So, good evening, friends. This is now sixth lecture. We have already gone through 5 sessions, and probably you find it okay. So, you gave your concurrence to go ahead with the next sessions. Now, as far as the fees is concerned, that is very clear to you, and as per your convenience, will and availability, kindly pay it so that we can continue with this class. And you all know, irrespective of fees received, we continue because that is our commitment to every individual. The one person who has paid fees will get full return back because we will be continuing whether 1 page or 10 page or 100 page. So anyway, that is not today's topic. As you all know, we have detailed analysis of UPSC specially in first and second lecture, and then we wanted you to get little acquainted with the subject details. So we covered CSAT. Hold on. I'm audible. Please put in chat box yes or no. Yeah. Okay. Thank you so much. So I was continuing with very important thing that we covered little bit of economics, where economy, you know, it's Arthavavastha and economics is Arthashastra. But sir has explained you very nicely that how such type of and how this subject questions are appearing in prelims or mains. Then we went into the second part for the prelims, which is very important, that is CSAT. Then Shankar sir has covered little portion, Mangalam sir has also covered. Today we will be touching upon very important subject that is related to the environment, science and technology and basic general science, which is up to 10th, 12th you know well. So this all topics comes under science and technology, जो हमारे साथ आरती मैडम है वो कवर करेंगी. She will be going very slowly so that even 9th standard will understand it, FYJC will understand it, and those who are little beyond that will obviously like it because madam has got wonderful knowledge domain and she has got lot of energy and enthusiasm to teach. So I will not get into the much details. It's already been 2-3 minutes which I have taken from your end. So now madam will take over. She will teach for the next 1 hour. Any queries you need to submit by attendance form which will be giving you at the end of the session in a WhatsApp group. आपको बीच में अगर कुछ queries है तो आपको सारी क्वेरीज जो है चैट बॉक्स में लिखनी है. कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा. जो रूल्स पहले 5 लेक्चर में थे वो अभी भी है. रूल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर फीस. सो रूल्स जो फॉलो नहीं करेगा, अगर 31 में से 6 लोग यहाँ बचे हुए हैं तो ये 6 में से 2-4 हम निकाल दे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. नहीं, आई एम नॉट threatening you, I am just telling you very important thing. Follow discipline, and this is very important. If you continue with the discipline, sincerity, enthusiasm for next 2-3 years, UPSC or MPSC is not a big thing for those who are sincere and dedicated people. Anyway, madam, please continue with your own methodology. No need to make hurry because they are having sufficient time to cope up with you syllabus and then continue with the exam or 2-3 attempts. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you. Okay, so we will start with जनरल साइंस टॉपिक. सो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देती हूँ कि आपके जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम होंगे उसमें जनरल साइंस में क्या क्या कवर होगा. तो बेसिक चीजें जो आप 10th 12th तक साइंस पढ़ रहे हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, तो आप बाकी के सब्जेक्ट्स में जो मेंटल एबिलिटी वगैरह है उसमें मैथ्स कवर हो ही जा रहा है आपका. साइंस में हमें ये 3 फोकसेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, ये सारी इन 3 साइंस से रिलेटेड है कहीं ना कहीं पे. फिजिक्स से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, केमिस्ट्री से है, बायोलॉजी से तो बहुत सारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो अभी पूरी दुनिया फेस कर रही है, इंडिया में कुछ हो जाएंगे, तो ऐसा जो है ये सारा बायोलॉजी से रिलेटेड है. इसलिए ये टॉपिक हमें यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे विच विल बी मोस्टली रिलेटेड विथ सच टॉपिक्स दैट कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या है. बायोडाइवर्सिटी मतलब आप सब लोगों को पता होगा, राइट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? मैंने अभी जो जिक्र किया बायोडाइवर्सिटी, हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर?
Yes, can you please write in short in chat box what is biodiversity? ओके, whenever any term, आपको मैं एक सिंपल रूल बता देती हूँ अभी बायोलॉजी के टर्म्स के लिए. ऐसा नहीं है कि हमें बायोडाइवर्सिटी इज फ्लोरा एंड फाउना अराउंड. करेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट, करेक्ट डेफिनेशन है ये. एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, अगर बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी टर्म के बारे में आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपको सारी की सारी टर्म्स याद रहेंगी, सारी की सारी आपने पढ़ी होगी. ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे मिस हो जाए. तो एक रूल बता देती हूँ, बायोलॉजिकल टर्म्स जो है वो सारी मोस्टली ग्रीक और लैटिन पीरियड से आई हुई है, या इंग्लिश की भी अभी भी चालू जो इंग्लिश है उसमें भी यूज की जाती है. तो अगर मैंने आपको एक टर्म अभी बताई है एग्जाम्पल के लिए बायोडाइवर्सिटी, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में. कैसे आसानी से हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो अगर हमने देखा तो वी कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स, दैट इज बायो एंड सेकेंड डाइवर्सिटी. तो अब हमें इंग्लिश के मीनिंग तो इसके पता है. बायो मतलब समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी विच विल बी रिलेटेड टू लिविंग एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स और एनी लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का सिंपल इंग्लिश मीनिंग जो है विविधता, जो इंग्लिश में से हम अगर हिंदी में बताने जाए तो विविधता. तो व्हाट विल बायोडाइवर्सिटी टेल अस, दैट लिविंग क्रिएचर्स की जो विविधता हमारे आजू बाजू में है वो. ओके, तो मैंने ये आपको इसलिए बताया कि अगर आपको पूरे जो आप सिलेबस पढ़ोगे, जो कुछ भी पढ़ोगे आप, तब बायोलॉजी के बहुत सारे टर्म्स आपको आएंगे. तो उसमें क्या हो सकता है कि किसी टर्म आपने पढ़ी है पर आपको उसका मतलब याद नहीं आ रहा है, या फिर आपने पढ़ी ही नहीं थी कभी, ऐसी टर्म है. तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके अगर उस टर्म को स्प्लिट करें और उसका मीनिंग निकालने जाए तो दैट बिकम्स इजी. और बायोलॉजी में सारे टर्म्स ऐसे ही मीनिंग से क्रिएट किए गए हैं. ओके, सो ये एक सिंपल रूल मैंने बता दिया जो आपको हमेशा के लिए उपयोगी रहेगा, ना कि सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बाकी भी अगर आप कहीं पे भी कुछ अलग पढ़ते हो तो यू विल गेट अ नॉलेज अबाउट इट. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर लेक्चर, एक्चुअल लेक्चर जो जनरल साइंस का. मैं बायोलॉजी का टॉपिक कवर करती हूँ आज के लेक्चर में, थोड़ा सा उसका पार्ट. सो वी विल स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. ओके, आपके जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ ब्रांचेस होंगे, तो हम पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे. तो अब मैं मेरा स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ. इज इट विजिबल टू यू और नहीं, जो है वो बता दीजिए चैट बॉक्स में एक बार. स्क्रीन सबको दिख रहा है? ओके, सिर्फ तनुश्री से रिप्लाई आया है, बाकी सबको यस. ओके, थैंक यू. सो वी विल बी कवरिंग इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो बेसिक है. तो पहले जैसे कि हम लोग यहाँ पे, मैंने अभी एक वर्ड आपको स्प्लिट करके दिखाया. तो बायोलॉजी, ये वर्ड आप कैसे स्प्लिट करोगे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, द वर्ड बायोलॉजी रेफर्स टू. So how will you write the answer of this question? The term biology refers to, मैंने अगर ऑप्शंस दिए आपको, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, रीडिंग अबाउट लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो आप इसमें से क्या चूज करोगे? मैंने 3 ऑप्शंस दिए आपको. स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, राइट. अगर हमने बायोलॉजी ये वर्ड स्प्लिट किया तो क्या होता है, पहला पार्ट आएगा बायो, जिसमें हम लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल थिंग्स मतलब लिविंग थिंग्स का जिक्र करेंगे. और लॉजी, ये जो वर्ड है ये आपको बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म्स में मिलेगा. उसका जो ग्रीक वर्ड है दैट इज लोगोस, which means in simple English it means study, to study. ओके, तो जो भी कोई, मैं इसके थोड़े से आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ. अगर ये हमने बायोलॉजी किया है तो लिविंग थिंग्स का स्टडी हो गया.
अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ बैक्टीरियोलॉजी, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे बैक्टीरिया और लोगोस में, बैक्टीरिया का स्टडी। ओके, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो को स्प्लिट कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, लोगोस स्टडी, तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज माइक्रोबायोलॉजी। ओके, इतना आसान है। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा दिया जाता है कि एक ब्रांच का नेम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला जूलॉजी, तो जूलॉजी, जू इज कंसर्न विथ एनिमल्स, लोगोस इज अगेन स्टडी, सो स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, ऐसा आप उसे इस्तेमाल कर पाओगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि एक आध टर्म पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल माइकोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ, तो अगर आपने ये टर्म पढ़ी होगी तो हमें पता चलेगा कि माइकोस मतलब फंगाई से रिलेटेड है ये। ओके, जैसे जैसे आप बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ते जाओगे, यू विल गेट फेमिलियर विद दीज टर्म्स। दे आर नॉट एट ऑल हार्ड, वो उनको ऐसे बैठ के रट लेना चाहिए ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली मेक अ चार्ट ऑफ न्यू वर्ड्स और न्यू टर्म्स जो आपको दिखेंगी कहीं पे भी, आप उनका एक चार्ट बना के घर पे कहीं पे लगा के रख सकते हो, ताकि आते जाते जब भी आप वो पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? बायो मीन्स लाइफ and logos to be means to study or the study. So what is biology? It is the study of life or the study of living things. And who is biologist? Biologist किसको बोलेंगे हम लोग? The person who studies biology naturally. So brief history of biology. अब ये पार्ट भी important है। ये साइंटिस्ट जो है इनका कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से आज हम जो कुछ पढ़ रहे हैं या पढ़ सक रहे हैं वो सिर्फ इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से है। तो इनके नाम याद रखना भी हमें इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का नेम और उसके बाद उसने क्या, उसकी क्या डिस्कवरी है। ओके, ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि the scientist who first classified living things, तो इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 साइंटिस्ट के नाम होंगे, आपको उसमें से सही ऑप्शन क्या है वो चुनना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम पहला साइंटिस्ट पढ़ेंगे एरिस्टोटल, ग्रीक फिलोसोफर। he was the first who classified living things as to air, land or water dwellers. So he is called father of biology. He is known to be a father of biology. तो ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है किसी भी एग्जाम के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आपने 12th के बाद का सीईटी, नीट ये भी कुछ देना है आपको, उससे शुरू होके यूपीएससी तक ये क्वेश्चन कॉमन रहेगा कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि बेसिक है, ये पता होना चाहिए। राइट, सो यू विल हैव टू राइट द आंसर एरिस्टोटल among the 4 options which are given to you. तो इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको या तो याद रहेगा या तो नहीं याद रहेगा, इसमें लॉजिक नहीं यूज करनी कोई, आपको याद करना ही पड़ेगा। ये इसका प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी कि किसने क्या किया है। सो दिस वाज अबाउट एरिस्टोटल। नेक्स्ट, सेकेंड साइंटिस्ट गैलन, ग्रीक फिजिशियन, first one to dissect apes and pigs. Therefore, he is known to be a father of anatomy. अब आप लोग ये देखोगे कि जो पहले एरिस्टोटल थे ये भी ग्रीक फिलोसोफर है। नेक्स्ट वन गैलन, ये भी ग्रीक फिजिशियन है। तो इसकी वजह से क्या है, जो बायोलॉजिकल टर्म्स है जिसने खोज की है वही कोई टर्म्स देता है। जो मैंने पहले बताया था, बायोलॉजी के बहुत सारे टर्म्स ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में ओरिजिनेट हुए हैं और जिनका हम अभी इंग्लिश मीनिंग लेते हैं। ओके, तो इसका रीजन ये है कि जिन्होंने खोज की है ये सारी चीजों की, वो ओरिजिन ग्रीक है उनका, तो इसकी वजह से लैंग्वेज दे हैव यूज्ड, उस लैंग्वेज में उसके सारे नाम है।
तो अब गैलन का क्या हो गया? ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन हु वॉज फर्स्ट टू डिसेक्ट एप्स एंड पिग्स. एप्स मतलब मंकीज. मंकीज का डाइसेक्शन किया, मतलब उनकी बॉडी ओपन की, पिग्स की बॉडी ओपन की, और इसीलिए उन्हें हम फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं. ओके, एनाटॉमी क्या होता है पता है आपको? एनाटॉमी वर्ड कहीं पे पढ़ा है किसी ने? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स. हैव यू रेड दिस वर्ड एनाटॉमी? एनीवन? यस, प्लीज राइट. what do you mean by anatomy? Everyone should answer in the class. Okay, no problem. Everyone should take participation in answering the questions. It can be yes or no. There is no problem of writing no. We are all here to learn. हम सब लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं. तो यू कैन राइट आंसर एज नो, जैसे तनुश्री ने बता दिया कि उसे पता नहीं है. नो प्रॉब्लम. वी आर हियर टू स्टडी, बट एटलीस्ट राइट समथिंग. यस, ओके. जिन्हें पता है प्लीज ट्राई टू राइट इट इन द चैट बॉक्स. एनाटॉमी का मतलब क्या है? If you want to explain it in anatomy, study of living beings, right? Not actually, the study of living beings is not known as anatomy. Study of living things हमने अभी पढ़ा कि study of living things is biology. So anatomy is basically the study of structure of living being. Structural features of living being. Correct. Body structure. मतलब एनाटॉमी में क्या कवर होगा कि हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, और लीवर कहाँ पे लोकेटेड है, किडनी कहाँ पे लोकेटेड है. ये मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स हमें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर पता है. बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग्स इज अ जनरल टर्म. ओके, किसी भी लिविंग थिंग के अंदर का जो स्ट्रक्चरल फीचर्स का हम स्टडी करेंगे उसे हम एनाटॉमी बोलेंगे. लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ये समझ लेना कि स्ट्रक्चरल फीचर्स जो कुछ होंगे, फॉर एग्जांपल हार्ट का लोकेशन पता चल गया, उसके बाद उसका कवरिंग क्या है, उसमें कौन कौन से वेसल्स ऐड हो रहे हैं, दिस ऑल इज इंक्लूडेड अंडर एनाटॉमी. ओके, मैं अभी एनाटॉमी का पार्ट बता देती हूँ. आप सिर्फ अभी इतना याद रखिए कि इट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर. इसके बाद जब आगे आएगा तब हम फिजियोलॉजी का मीनिंग सीखेंगे. ओके, आज के लेक्चर में ही मैं थोड़ी देर बाद आपको फिजियोलॉजी क्या है वो बताती हूँ. राइट नाउ ओनली रिमेंबर दैट एनाटॉमी इज रिलेटेड विथ स्ट्रक्चर. सो गैलन वाज नोन टू बी अ फादर ऑफ एनाटॉमी. क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले डाइसेक्शन किया. डाइसेक्शन करने के बाद उन्हें हर एक ऑर्गन के बारे में पता चला, कहाँ पे क्या होगा. टू ओरिजिनेट दिस, किसी के दिमाग में ये पहली बार आएगा कि चलो इसके अंदर क्या है ये चेक करने के लिए हमें इस एनिमल को खोलना पड़ेगा, राइट? उसका डाइसेक्शन करना पड़ेगा. तो ये कंसेप्ट उन्होंने लाई, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एनाटॉमी बोलते हैं, कहते हैं. सो द नेक्स्ट साइंटिस्ट Andreas Vesalius made the first dissection on human anatomy and he discovered comparative anatomy. अब क्या हो गया इसमें? जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने एनाटॉमी का खोज किया, उन्होंने डाइसेक्शन का खोज किया, और उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए जिन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ा. पहले एप्स और पिग्स में हुआ, उसके बाद उसका एडवांस लेके ह्यूमन में हो गया, राइट? एंड व्हाट ही डिस्कवर्ड, कंपैरेटिव एनाटॉमी. मतलब क्या? कि कंपैरिजन करना, एनिमल्स का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऑर्गन्स क्या है, स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है, और ह्यूमन बीइंग्स के क्या है, और अलग अलग एनिमल्स में भी ये कंपैरिजन हो सकता है. ओके, सो द नेक्स्ट वन वाज एंड्रियस वेसेलियस. नेक्स्ट साइंटिस्ट विलियम हार्वे.
showed conclusively that the heart pumps blood and the blood circulates. अब अगर हम 21वीं सदी में ये इमेजिन करने जाए तो ये बहुत ही सिंपल है ना कि हार्ट से ब्लड पंप होता है, हमें तो पता ही है कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, इसी की वजह से लोग जिंदा है और ब्लड का पंपिंग हार्ट में से हो रहा है। ऐसा इमेजिन करो जब कुछ भी पता नहीं था, तब इस साइंटिस्ट ने ये खोजा कि ड्यू टू पंपिंग ऑफ हार्ट ब्लड इज सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी। ओके, तो ये फंक्शन हार्ट का है, इसलिए ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो खोज है वो कुछ मायने रखती है। अगर इन्हें तब पता नहीं चलता, ऐसा इमेजिन करो कि इन्हें तब पता नहीं चलता कि ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है इसका ओरिजिन हार्ट में से हो रहा है, अगर ये हमें पता नहीं है तो क्या होता आज जो इतने बड़े हार्ट सर्जन हुए, आगे जाके हार्ट के कॉम्प्लेक्सिटीज हमें पता चल गई, कौन सी एबनॉर्मेलिटी है ये फाइंड आउट करने के लिए जिन मशीन्स की खोज हुई, क्या इतना सब कुछ हो पाता? तो सिंपली नहीं। अगर ये पता ही नहीं चलता कि हमारे बॉडी में जो ब्लड बह रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ हार्ट। हार्ट इज द मेन ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एंड सर्कुलेशन, राइट। तो इसलिए जिनकी खोज बहुत ज्यादा मायने रखती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन साइंटिस्ट के नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन वी कैन नाउ प्रोसीड विथ फर्दर मॉडिफिकेशंस, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मुझे खुद को कभी कभी पहले ऐसे लगता था कि साइंटिस्ट के नाम याद करके मुझे क्या करना है, राइट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई स्टडी। मुझे क्या करना है ये मैं खुद तय करूंगी, मैं साइंटिस्ट के नाम क्यों याद करूं, मेरी पढ़ाई में साइंटिस्ट के नामों का क्या मतलब है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, मुझे ये बाद में पता चला कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये लर्न करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी खोज इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको साइंटिस्ट का नाम ही नहीं पता है, किसी एक ने ये ढूंढा था, इट इज नॉट राइट। किसने ढूंढा था, उसके बाद उसकी इंप्रूवमेंट कैसे हुई, ये हमें पढ़ना जरूरी होता है। ये पढ़ना क्यों जरूरी होता है, उससे हमें पता चलेगा कि आज तक कहाँ तक ये सारा जो स्टडी है वो कहाँ तक आज के लिए पहुंचा है और इसके बाद क्या करना है। अब अगर आप ऐसा इमेजिन करोगे कि एक स्टडी हार्ट का जो फॉर एग्जांपल हम लोग अभी इमेजिन करते हैं कि एंजियोग्राफी तक खोज हुई है। एंजियोग्राफी में हमें पता चल रहा है कि हार्ट में जो वेसल्स है उनमें कितने क्लॉट्स है, ये हमें पता चल चुका है। यहाँ तक का हमें नॉलेज है। इसके आगे हमें कैसे बढ़ना है, ये स्टडी करने के लिए पहले लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया और वो कैसे कैसे आगे बढ़ते गए, ये सीखना इंपॉर्टेंट है। ओके, एज अ पॉइंट ऑफ रिसर्चर, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्चर, अगर आप खुद वहां पे जाके खोज रहे हो तो, अगर आप नहीं भी खोज रहे और आपको किसी को गाइडलाइन देनी है, सिर्फ रिसर्च कोई और करेगा, लेकिन आपको आपकी पोस्ट ऐसी है कि आपको उसे गाइड करना है कि हाउ यू कैन डील विद दिस। आपको पता नहीं है हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें कहाँ पे क्लॉट्स होते हैं, कहाँ पे वेसल से, आपको कुछ नहीं पता है, फिर भी आपको उसे एक रास्ता दिखाना है। वो सारा जो रिसर्चर है वो स्टडी करेगा, वो डॉक्टर स्टडी करेगा, आपको रास्ता दिखाना है। रास्ता दिखाने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा कि ये पहले लोगों ने क्या किया था। Okay, so this thing is important and that's why you have to remember names of scientists and their work. What is their contribution in all the fields? Okay, so हमने अभी तक विलियम हार्वे तक पढ़ा, who has showed conclusively that the heart pumps blood and the blood circulates. Next, Marcello Malpighi, Italian physician and anatomist, फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो अब ये क्या हो गया, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, ये दो टर्म्स आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, राइट। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जो चीजें हमें ऐसे ही आई से नहीं दिखेंगी, जो किसी माइक्रोस्कोप में से या मैग्नीफाइंग लेंस में से आपको दिखेंगी, वो सारी चीजों को हम माइक्रोस्कोपिक थिंग्स बोलते हैं।
तो उनकी एनाटॉमी पढ़ना इन्होंने चालू किया, मार्सेलो मालपिगी। नेक्स्ट, एंटोन वैन ल्यूएनहोक, he was first to use microscope, discovered microorganisms such as protozoans and called them as animalcules। मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है तो मैं इस साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ आपको कि इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की। ओके, आप स्कूल में माइक्रोस्कोप यूज किया होगा बहुत सारे लोगों ने, आप में से। हैव यू यूज्ड माइक्रोस्कोप इन स्कूल्स और समवेयर इन कॉलेजेस? यस, सबने यूज किया है। तो उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, हम लोग माइक्रोस्कोप क्यों यूज करते हैं? जो छोटी चीज है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगी वो मैग्नीफाई होती है, बड़ी होके हमें दिखती है, राइट? और माइक्रोस्कोप इसलिए तो फिर हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस क्यों नहीं यूज करते जो घर पे होती है? अगर हमारे दादा दादी घर पे है तो पेपर पढ़ने के लिए कुछ लोग वो मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, तो उससे भी तो दिख सकता है। उसके लिए पूरा माइक्रोस्कोप खोजने की क्या जरूरत है? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का साइज डिफरेंट होगा, तो उसे देखने का तरीका अलग होगा, और वो अगर एक ही में सारे फीचर्स आ गए तो और आसानी होगी, राइट? ये नजर रखते हुए ल्यूएनहॉक ने माइक्रोस्कोप की खोज की। और ये कोई भी बायोलॉजिस्ट नहीं था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं था, कुछ बायोलॉजी का साइंस का भी बैकग्राउंड नहीं था, वो सिर्फ उनकी वॉच रिपेयर करने की दुकान थी, घड़ी रिपेयर करने की दुकान थी। तो उसमें घड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट्स वो मैग्नीफाई करके देखते थे, उससे उन्हें ये आइडिया मिला कि हमें छोटे छोटे जो कुछ चीजें होंगी वो भी दिखेंगी। और वो करते करते, वो स्टडी करते करते उन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की। सो उनका डायरेक्टली बायोलॉजी से कोई संबंध नहीं था, पर फिर भी ही हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, राइट? तो आपका अभी तक का फील्ड कौन सा है ये तय नहीं करेगा कि आपको ये बायोलॉजी है तो मैं ये थोड़ा कम पढ़ूंगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। सबके बारे में अगर आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, इट विल बी हेल्पफुल, राइट? ऐसा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड कौन सा है और आप कहाँ पे काम कर रहे हो। तो ये ल्यूएनहॉक के बारे में है, इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की है। चार्ल्स डार्विन, डार्विन का नाम तो हम बहुत मतलब स्कूल से पढ़ते ही आ रहे हैं। He wrote the book on the origin of species by means of natural selection. Basically, in simple terms, चार्ल्स डार्विन का काम किस फील्ड में है? कैन समवन राइट इन चैट बॉक्स किस फील्ड में इनका काम है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये उन्होंने लिखा, दैट इज ओके इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। यस, सारे साइंटिस्ट का बायोलॉजी में ही है। एंथ्रोपोलॉजी नो। एक थियोरी ऐसे बताती है कि ह्यूमंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एप्स, मंकी से हम मतलब मंकी के मॉडिफिकेशन ह्यूमन बीइंग्स है, इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन के फील्ड में उनका बहुत ज्यादा काम है। उन्होंने ये थ्योरी दी है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत गहरा टॉपिक है, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि चार्ल्स डार्विन का जो मेन फोकस ऑफ स्टडी है और जिसमें उनका नाम लिया जाता है, दैट इज इवोल्यूशन। इनकी एक लाइन है जो बहुत ज्यादा फेमस है, विच इज, आई विल राइट इट इन द चैट बॉक्स, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हैव यू read this line before? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, तो ये भी याद रखिए कि ये चार्ल्स डार्विन की लाइन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सिंपल इंग्लिश मीनिंग है इसका कि जो फिट होगा वो सरवाइव होगा। अगर हम देखने जाए तो इसका बहुत ज्यादा डीप मीनिंग भी है। उन्होंने ये लाइन इसके हिसाब में दी थी कि स्पीशीज के हिसाब में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी इमेजिन करें कि कोरोना है और ह्यूमन बींग्स है, कोरोना और ह्यूमन बींग्स के बीच में जंग चल रही है अभी,
तो इसमें भी यही आता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द वन हु इज फिट, आइदर कोरोना और ह्यूमन विल सर्वाइव. ओके, सो मैंने ये एक बहुत ही जनरल एग्जांपल दिया है. ऐसा नहीं है कि कुछ सालों बाद ह्यूमंस गायब हो जाएंगे या कोरोना गायब हो जाएगा. एक जनरल टर्म में मैंने एग्जांपल दिया आपको. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो दो अगर स्पीशीज लड़ रही है तो उनमें जो फिट होगा दैट वन विल सर्वाइव. सेम हम अगर आपको अगर यूपीएससी के या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म यूज करनी है तो हाउ विल यू यूज इट? जिसने ज्यादा पढ़ाई की है वो ज्यादा फिट है टू गिव दैट एग्जामिनेशन एंड दैट पर्सन विल सर्वाइव इन द एग्जामिनेशन. राइट, सो ऐसा है ये जो चार्ल्स डार्विन की थियोरी है दैट सेज he has worked on evolution, origin of species by means of natural selection and survival of the fittest. ये तीन जो है ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है. सो अब तक हमने जो साइंटिस्ट पढ़े मैं सिर्फ फिर से एक बार इन शॉर्ट आपको बता देती हूं. एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी. गैलेन, फादर ऑफ एनाटॉमी. He dissected apes and pigs. Next, Andreas Vesalius. He discovered comparative anatomy and he first dissected humans to study human anatomy. William Harvey. He showed that blood is circulated and pumped through heart. Marcello Malpighi. His work was माइक्रोस्कोपिक इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. मतलब जो हमारे किडनी के अंदर के पार्ट से मतलब एनाटॉमी की डाइसेक्शन किया बॉडी का. किडनी तो सामने दिख रही है, हार्ट सामने दिख रहा है, लेकिन उसके जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स है किडनी के अंदर और क्या क्या है ये भी तो ढूंढना है हमें. सिर्फ बाहर से किडनी दिख रही है, अच्छी है, छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है. किडनी के अंदर कुछ एक्टिविटीज चल रही है तो उनका भी हमें स्ट्रक्चरल फीचर्स देखने हैं. सो इसकी खोज इन्होंने की है. सो दैट इज फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. एंटोन वैन ल्यूएनहुक, ही डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप. चार्ल्स डार्विन, इवोल्यूशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ओके, तो ये सारे साइंटिस्ट आपको अभी पता चल गए. दिस लिस्ट इज नॉट लिमिटेड टू दीज साइंटिस्ट ओनली. ये लिस्ट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे बायोलॉजी. ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, साइंटिस्ट के नाम ऐड होते जाएंगे. तो मैं आपको अभी एक सजेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो हम साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे वो साइंटिस्ट का नाम उसके आगे जो उसका मेन कंट्रीब्यूशन है या क्या उसे बुलाया जाता है, फादर, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो कुछ भी होगा उसके नाम के आगे लिखते जाइए और ऐसी एक लिस्ट आपके पास बना के रखिए. तो जब आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करनी होगी इट विल बी इजियर फॉर यू. अभी हम स्लो जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ साइंटिस्ट के नामों पर अब हमने फोकस किया, वो क्यों पढ़ने चाहिए इस पे फोकस किया है. तो अभी के लिए शायद आज जो हमने 6-7 नाम पढ़े वो आपको याद रहेंगे, बट जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे हमें बहुत सारा सिलेबस है तो हम एक साइंटिस्ट का नाम और उसकी खोज पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे. तो वहां पे आपको ही ये आदत करनी पड़ेगी कि जैसे ही किसी साइंटिस्ट का नाम आया उसके आगे उसका जो कुछ भी मेन कंट्रीब्यूशन है टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी और टू एनी फील्ड ऑफ साइंस वो आपके लिख के रखना है. दिस इज ऑल्सो नॉट लिमिटेड टू बायोलॉजी ओनली, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू. उन सब्जेक्ट्स में, उन साइंसेस में भी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. And how they have found, how they have come to that conclusion, ये भी important है. Okay, so now we will move on. Divisions of biology. There are two major divisions of biology. There are n number of divisions of biology, but two major जो बहुत commonly जो आपको जिससे आप ज्यादा concerned होगे वो ऐसे दो ही है. First one is botany. Botany means the study of plants, and second one is zoology, which means the study of animals. Okay,
आपको ये दो फील्ड्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा स्टडी आपको इन चीजों का करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, देर आर n नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी which include like botany, zoology, biodiversity, biotechnology, and you can say bioinformatics, microbiology. ओके तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है, हिमेटोलॉजी, ये सारे फील्ड्स बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो दो मेन फील्ड्स है, दे आर बॉटनी एंड जूलॉजी। सो बॉटनी में भी अगर कुछ और फील्ड्स हमें ऐड करने हैं तो व्हाट आर दे? डेंड्रोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ ट्रीज एंड देयर हिस्ट्री। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये ऐसे स्पेशल कोर्सेज होते हैं, बीएससी इन फॉर एग्जांपल डेंड्रोलॉजी, तो क्या उनका पूरा सिलेबस जो फोकस होता है सिलेबस का, दैट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड हाउ दीज ट्रीज हैव ओरिजिनेटेड और हाउ दे आर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स। ये जो सारी चीजें हैं ये डेंड्रोलॉजी में कवर होंगी। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगाई and their association with some plants. Paleobotany, study of fossil plants. Phytopathology, अब पैथोलॉजी ये टर्म हमने बहुत बार पढ़ा है, पैथोलॉजी हैज समथिंग टू डू विद डिजीजेस, सो फाइटो इज समथिंग रिलेटेड विद प्लांट्स, तो फाइटो प्लांट्स का पैथोलॉजी, प्लांट्स के डिसीजेस का स्टडी, दैट इज फाइटोपैथोलॉजी। एग्रीकल्चर, स्टडी ऑफ ग्रोइंग द फूड्स। पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स। तो ये बहुत बेसिक टर्म्स है विच यू हैव टू रिमेंबर। ओके, या आपको इनके गेसेस करने पड़ेंगे कि क्या हो सकता है ये। अगर आपसे याद रहता है तो दैट इज गुड। आई विल सजेस्ट दैट आप रोज ये पढ़ते जाएंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएंगे, और एक बार ये चीजें याद हो गई तो दे आर अनफॉरगेटेबल, आप चाहो तो भी भूल नहीं सकते हो। आपके साथ एक अच्छा है कि आपने बहुत पहले शुरुआत की है यूपीएससी की स्टडीज के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडीज के लिए, तो क्या होगा, आपका जो स्पैन है ये पढ़ने का वो ज्यादा रहेगा। अगर कोई एक बंदा एक साल में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो रोज वो ये चार्ट लेके तो नहीं बैठ सकता पढ़ने के लिए। बट व्हाट इज एडवांटेजियस टू यू इज दैट आप रोज पढ़ोगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके पास क्या है, स्कूल का थोड़ा सा स्टडी है, कॉलेज का थोड़ा स्टडी है, राइट, तो वो करते करते आपको पढ़ना है, इट इज ओके। ऐसे दिख जाएगा आपको, अगर आपने रूम में कहीं पे लगा के रखा तो आते जाते दिख जाएगा और याद हो जाएगा। ओके, सो दीज आर विथ these were related with botany. Now coming to zoology, तो ये जो सारे हैं ये नाम आपको अभी मैं इनमें नहीं जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको शायद वो डेंजर लगेंगे कि ये मैं कैसे याद करूं। ऐसा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले तो ये सारे जब हम जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन सीखेंगे ना, तब मैं ये सारे नाम आपको फिर से बता दूंगी, तब आपको ये लगेगा कि ये कितना आसान था। ओके, इट इज वेरी इजी, बट व्हेन यू विल स्टडी इट इंडिविजुअली यू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। आपको अभी ये नामों की लिस्ट लग रही है, पर जब आप इनका एक एक का स्टडी, हम जब जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आपको ये और इंटरेस्टिंग लगेगा कि ऐसी किसी चीज को हम इस नाम से पुकारते हैं। ओके, सो नाउ which are some main branches of biology? So the first one is anatomy, जो हमने anatomy के बारे में अभी बोला था पिछली स्लाइड में। Anatomy is the study of structures of entire organisms and their parts. तो यहाँ पे जो focused word है that is structure. Organism के structure का study is anatomy. Okay. नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि पहले आप एनाटॉमी पूरी तरह से याद कर लीजिए। एनाटॉमी इज इक्वल टू स्ट्रक्चर। आप जब नोट्स बनाओगे या क्विकली रिवीजन के लिए पॉइंट्स बनाओगे तो आप कैसे बना सकते हो, आप कहीं पे नोटबुक में या कहीं पे ऐसा लिख के रख सकते हो दैट एनाटॉमी और उसके आगे स्ट्रक्चर।
पूरा डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आपको समझ में आ गया है कि एनाटॉमी मतलब क्या है, कि उसका मीनिंग समझ में आ गया है कि हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है, उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स आपको पढ़ने हैं, तो आप नोटबुक में ये पॉइंट मेंशन करके रख सकते हो दैट एनाटॉमी इज समथिंग रिलेटेड विथ स्ट्रक्चर. So now coming to the next point, which is physiology. So what is physiology? It is the study of how the how body and its parts work. So simply I'll write this in easier words. Physiology is related with please give me a moment. Yes. फिजियोलॉजी इज रिलेटेड विथ फंक्शन. जिन बॉडी पार्ट्स का हमने एनाटॉमी में स्ट्रक्चरल स्टडी किया था उनका फंक्शनल स्टडी मतलब फिजियोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पहले ही एग्जाम्पल लिया है उसी के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि एनाटॉमी में हमने पढ़ा है हार्ट का लोकेशन, हार्ट कैसा दिखता है, उसमें 4 चेम्बर्स है. अब उसका फिजियोलॉजी मतलब क्या, कि वो ब्लड पंप करता है, दैट इज इट्स फिजियोलॉजी. ओके, जो हार्ट के लोकेशन के बारे में बताने जाएगा दैट इज इट्स एनाटॉमी, एंड पंपिंग, ब्लड पंपिंग इज इट्स फंक्शन, ये जो बताएगा इसका जो स्टडी होगा दैट इज फिजियोलॉजी. ओके, सो एनाटॉमी इज रिलेटेड विथ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी इज रिलेटेड विथ फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अ स्ट्रक्चर. पहले हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं फिर उसका फंक्शन, या वाइस वर्सा भी रिसर्च जाता है. कोई ऑर्गन हमें दिख नहीं रहा है पर वो फंक्शन हो रहा है बॉडी में, ये पता चल रहा है, तो वो फंक्शन के हिसाब से अगर हम ढूंढने जाए तो हम उसका स्ट्रक्चरल फीचर्स इमेजिन कर सकते हैं. ओके, सो अभी हमें ये टर्म्स भी तो हमने अभी ये टर्म्स भी पढ़ ली कि व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज फिजियोलॉजी. नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी. This is a very important branch of biology according to UPSC exam point of view. Why? I'll explain it now. Ecology is the study of how organisms interact with their environment and with other organisms. तो जो environmental concerns है उनके बारे में एड्रेस करने के लिए हमारी इकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए. Okay, how the organism gets affected by certain environmental condition or how environmental conditions get affected by activity of some organisms, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. तो ये दोनों चीजें पढ़ने के लिए हमें इकोलॉजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है. तो ये जो अभी हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है. इकोलॉजी ये जो है ये एनवायरमेंटल फील्ड से रिलेटेड है. ओके, सो रिमेंबर दिस टर्म ऑल्सो दैट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद देयर एनवायरमेंट एंड विद अदर ऑर्गेनिजम्स. दिस इज नोन एज इकोलॉजी. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस टर्म वेरी नाइसली बिकॉज आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में. क्योंकि आप भी जानते हो जो कोई भी ये सारी एग्जाम्स देके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये देके जो इंसान आगे जाएगा उसे इन्हीं कंसर्न्स के साथ डील करना पड़ेगा. राइट, जैसे आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन चीजों से डील करना है, वैसे ही हमारा एनवायरनमेंट हमारे साथ क्या कर रहा है इससे भी हमें डील करना है. फॉर एग्जाम्पल, अभी का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो कैसा है कि कहीं पे निसर्ग वादळ, राइट, ये स्टॉर्म आया था अभी रिसेंटली, तो इट वाज अ एनवायरमेंटल फैक्टर. राइट, अगर कोई बंदा इस चीज पे फोकस्ड है कि हमें कैसे, मतलब वो स्टॉर्म उसके बाद क्या करना है, कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, ये सारा स्टडी जो है वो इकोलॉजी में आता है. एक बार आके गया, जो होना था हो गया है, अब उसके बाद ये क्यों आया था और इज इट पॉसिबिलिटी दैट ऐसा फिर से कुछ होगा, ये स्टडी खुद नहीं करना है जाके.
ओके, ये सारा काम बायोलॉजिस्ट का है, इकोलॉजिस्ट का है, वो खुद जाके स्टडी करेगा। लेकिन आपको ये सवाल तो दिमाग में आना इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों आया था। तो इसका स्टडी करने के लिए मुझे एक कमिटी बैठानी है कि 4 लोग आके बैठेंगे और स्टडी करेंगे कि ये जो अभी स्टॉर्म आया ये क्यों आया था और आगे जाके ये ना आए इसलिए मैं क्या कर पाऊंगा। तो जो चीजें वो लोग आपको बताएंगे, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज, हाँ ये चीजें ये इंसान जो बता रहा है वो मुझे रिलेट हो रही है कहीं पे, इनके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। ब्लाइंडली आप किसी पे भरोसा तो नहीं कर सकते, आपको भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसका बेसिक नॉलेज जरूरी है। ओके, समझ में आया आपको? ये सिर्फ आप याद रखने से अच्छा है कि आप इसके साथ साथ ये भी समझ ले कि आपको ये क्यों याद रखना है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये समझ लेना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ओके, so now next one is, again it is related with the medical field, parasitology. So this parasitology is the study of the organisms that live in or on other organisms that cause diseases. So जो पैरासाइट जिनको हम बोलते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और या दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहते हैं, उनका स्टडी और जिनकी वजह से डिसीज होता है, इस सब का स्टडी यानी कि पैरासाइटोलॉजी। Next one, which is again very important for all competitive exams, is taxonomy. So what is taxonomy? Please give me a moment. Yeah. It is the study of classification and evolutionary interrelationships among organisms. मतलब जो ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबका ये बेसिक है कि अभी अर्थ पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से लिविंग बींग्स है, इनका स्टडी, ये कैसे डेवलप हुए, इनका आगे जाके क्या होने वाला है, या ये एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसका स्टडी ये सारा आता है टैक्सोनॉमी में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स, इनमें कुछ डिफरेंसेस है जो डायरेक्टली आंखों से दिखते हैं, पर देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो हमें सिर्फ देख के हम उनमें फर्क नहीं कर सकेंगे, पर क्या उनमें फर्क है और अगर है तो वो कहाँ तक है, ये स्टडी करना इज टैक्सोनॉमी। और उनका इवोल्यूशन मतलब वो यहाँ तक जहां तक वो ऑर्गेनिज्म है वो वहां तक पहुंचा कैसे और उसके एंसेस्टर्स कौन थे, ये जो सारा स्टडी है दैट इज रिलेटेड विथ टैक्सोनॉमी। सो अगेन टैक्सोनॉमी इज द one of the basic systems of biology or basic study system in biology which is very important. आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ी भी होगी शायद, I don't know whether 9th or 10th people have studied the taxonomy, that is kingdom system. Have you studied this kingdom? There are 5 kingdoms. संकल्प से yes आया है, तनुश्री no, okay. ओके, सो द 5 किंगडम सिस्टम इज देयर। हमने किंगडम्स को मतलब जो लिविंग बींग्स है हमारे आजू बाजू में, उनको 5 किंगडम्स में डाला है डिपेंडिंग ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे दिखते हैं, वो क्या करते हैं, इनके ऊपर डाला है। अभी हम इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना याद रखना है। तो 5 किंगडम सिस्टम ये अब भी यूज की जाती है, तो ये भी आप याद करके रखिए कि क्लासिफिकेशन के कौन से सिस्टम अब भी यूज में है, तो दैट इज 5 किंगडम सिस्टम। ओके, जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर सीखेंगे, इन डिटेल्स में जाएंगे, तब आपको बहुत और अच्छे से पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या है, कि हर एक सिस्टम में हर एक जो किंगडम है उसमें क्या क्या आता है और क्यों आता है। सो द नेक्स्ट ब्रांच इज एम्ब्रियोलॉजी। The study of development and growth of organisms is embryology. Embryo का meaning हम सबको पता होता है, तो the growth of that embryo is known as embryology. Study of their growth pattern. Okay, this one is also most focused branch of biology. Why?
बिकॉज हर एक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ पैटर्न क्या है, ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ पैटर्न क्या है, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कुछ डिसीज ऐसे हैं जो ग्रोइंग पैटर्न में ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब डिफरेंट ग्रोइंग पैटर्न है, इसकी वजह से कुछ डिसीज ओरिजिनेट हुए हैं। तो वो डिसीज हम कैसे मिटा सकते हैं, ये स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एम्ब्रियोलॉजी ये ब्रांच इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज साइटोलॉजी। साइटोस मीन्स सेल्स, so the study of function and structure of cell is known as cytology. What is cell? Can you please tell me what is cell? Basic unit of life. Very good. Any other views about cell? The fundamental unit of life, correct. Single organism, okay. Very good, correct. Smallest living organisms, okay. ओके, सो अभी अगर हम देखने जाए तो सिंगल ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम कंसिडर करें तो ह्यूमन बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। सो सेल्स का प्रॉपर डेफिनेशन ये होगा कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे लाइफ आगे बढ़ेगी, दैट इज सेल। ओके, सो अगर मुझे सिंपली थोड़ा एग्जाम्पल देके मैं आपको अगर बताते जाऊं तो ऐसा है कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर, वन ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसका ऐसे 10-12 ड्रॉप्स एक साथ आ गए, 100 आ गए, मिलियन आ गए, तो क्या होगा, एक लेक तैयार होगा, ज्यादा ड्रॉप्स ऑफ वाटर आके। सो सिमिलरली एक सेल है, ज्यादा सेल्स आ गए और पूरी ह्यूमन बॉडी बन गई। ओके, all of you which you have mentioned is correct. Cell, living organism, smallest living organism. So the smallest living or जो living organism सबसे ज्यादा smallest है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? They are single celled और यूनिसेल्यूलर, जिनमें सिर्फ एक सेल होगी, वो सबसे स्मॉलेस्ट होंगे। और जो बहुत बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ह्यूमन बींग्स कंसिडर किया तो हमारे अंदर एक नहीं लाखों सेल्स है, हर एक सेल का डिफरेंट फंक्शन है, हर एक सेल का डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ओके, सो द स्टडी ऑफ सेल्स, दीज सेल्स, इट कैन बी यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, सेल्स के जो डिटेल्स है वो भी हमें सीखने हैं बायोलॉजी में। दिस टॉपिक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कि सेल्स की खोज किसने की है, सेल्स क्या है, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उन पे डिपेंडेंट क्या क्या सिस्टम्स है, ये सारा सेल्स में आता है। ओके, सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेल विल बी, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, क्लियर हो गई सेल की डेफिनेशन अभी? क्यों हम सेल को स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं बोलेंगे? क्योंकि सेल, smallest living organism is made up of cell, but cell can be present in multicellular organism like human beings also. Can be means it is present in human beings as well. Okay, very good. और इन cells के स्टडी को हम लोग बोलेंगे साइटोलॉजी। Next one is microbiology. It is the study of microorganisms such as bacteria, protozoans and viruses. तो जो माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स है, जो नेकेड आई से हमें नहीं दिखेंगे, माइक्रो इज माइक्रोन, दैट इज वेरी स्मॉल साइज। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, सो स्मॉल साइज्ड लिविंग थिंग्स का स्टडी इज माइक्रोबायोलॉजी। Paleontology, it is the study of fossils or the preserved remains and traces of organisms from the past. जो पास्ट में ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स रहे हैं उनका स्टडी करना, यानी पैलियोंटोलॉजी। ओके, सो नाउ वी विल
We will continue our lecture in next session. हम इसके बारे में और थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे. So how was it? Everything got clear? आपको सारी concepts समझ में आ गई? Okay. Was it too fast or too slow? Anything? ज्यादा फास्ट था, स्लो था? आप प्लीज आपका थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए, या ये नॉर्मल स्पीड है? वी कैन कंटिन्यू विद दिस स्पीड. ओके, वेरी गुड, परफेक्ट. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क एट एनी टाइम. यू कैन राइट योर डाउट इन चैट बॉक्स. इफ आपको अगर चैट बॉक्स में लिखने में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा डाउट है, यू कैन स्विच ऑन योर माइक, बट ओनली आफ्टर टेकिंग परमिशन. आप माइक स्विच ऑन करके आपका डाउट पूछ सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम. Okay, very good. So for now, thank you and bye.